Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the double circulation as well as the regulation of the cardiac activity. We studied that heart is self-regulatory. That is, it is autonomic in its function, and that is due to the presence of the specialized nodal tissue present in the wall of the heart. This nodal tissue was SA node, which regularly will be sending the signals for the contraction of the atrium and then for the ventricles. So after that, we have also discussed that sometimes the activity of heart is regulated by the nervous system as well as by chemical regulation. In chemical regulation, we have discussed that there are certain hormones like epinephrine and norepinephrine that will be regulating your cardiac activity. Whereas in neural regulation, we have discussed that there are specialized receptors called baroreceptors present in the larger arteries of our body like aorta. And any fluctuation in the blood pressure will be recognized by these baroreceptors and the signals will be sent to the central nervous system. A feedback signal coming from the central nervous system will be responsible for dilating the arteries and thereby again reducing the blood flow and blood pressure. So in this way we have discussed about the regulation of cardiac activity. The last topic that we are heading towards in this chapter is the topic of disorders of circulatory system. हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और कौन से हमने कॉमनली सुने हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी इंक्लूडिंग hypertension. The very first disorder that we need to understand is hypertension. Hypertension is a situation of high blood pressure. Okay, hypertension itself means high blood pressure above 120/80. Now 120/80 ये क्या होता है? तो जब ब्लड प्रेशर 120/80, 120/80 से बहुत ही ज्यादा हो और कंसिस्टेंटली ज्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है. हाई ब्लड प्रेशर में जो 120 है, हियर 120 represents the systolic blood pressure which is measured in mmHg, millimeter mercuric pressure. ठीक है, तो 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है. ठीक है, और 80 जो है, 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर. 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर, या तो आप उसे रेस्टिंग प्रेशर भी कह सकते हो. पर याद रखिए 120/80 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. ठीक है, 120/80 जब तक हो तब तक वो नॉर्मल है. पर अगर वो 120/80 से काफी ज्यादा है और कंसिस्टेंटली रेगुलर चेक करते पर भी वो ज्यादा ही वैल्यू दिखा रहा है, तो उसका मतलब होता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, सो प्रेशर अबाउ blood pressure above 140/90 indicates hypertension. तो उसे हाइपरटेंशन कब कहेंगे? 120/80 हो तो वो नॉर्मल है, पर अगर आप बार बार चेक करवाने पर भी आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हार्ट ऑब्वियसली पंप कर रहा है ब्लड को, तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो प्रेशर होता है सिस्टोलिक. बट व्हेन द ब्लड इज रिटर्निंग बैक टू हार्ट तो प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वो ऑर्गन्स में ऑलरेडी कैपिलरीज में ट्रैवल किया हुआ है और फिर वो वेन्स में आ रहा है. ठीक है, तो वापस आने पर जो प्रेशर बनता है वो थोड़ा कम हो जाता है और इसीलिए वो है
diastolic pressure. Hypertension is sometimes very severe because it affects the vital organs of our body like brain, eyes and kidneys. So it affects the vital organs like brain, kidneys and eyes. Okay, so these are the vital organs which often get affected if the blood pressure is very high. ठीक है, तो ये हो गया first disorder, that is hypertension. The second disorder that we are going to discuss is coronary heart disease. Coronary artery diseases. Coronary artery diseases is called CAD. Coronary artery diseases, that is CAD. Coronary artery diseases are also known as, it is also known as atherosclerosis. What it is called? It is known as atherosclerosis. Atherosclerosis में क्या होता है कि the arteries which are supplying the blood to the wall of heart, ये arteries में deposit हो जाता है calcium, cholesterol, fats and some other fibrous tissue. ये सब जब आर्टरी में डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है and that leads to the atherosclerosis. Okay, so here in the coronary arteries are the arteries which supply blood to the wall of heart. In the arteries there is deposition of fats, cholesterol, calcium and along with fats, cholesterol and calcium, some other fibrous tissue gets deposited and therefore lumen of the arteries reduces. ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है. ल्यूमेन का मतलब क्या होता है कि आर्टरी के अंदर जो स्पेस है जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट, तो उसे ल्यूमेन कहा जाता है. तो यहाँ पे ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाएगा. क्यों नैरो हो गया है? क्योंकि वॉल जो है आर्टरी की अंदर की तरफ, इनर वॉल जो है, वहां पे फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू सब डिपोजिट होके एक प्लेक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो अटक जाता है. और ब्लड का फ्लो जब रिड्यूस हो जाता है तो हार्ट के मसल्स को ही इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता और इसी की वजह से देयर कैन बी अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हार्ट आल्सो, लाइक कार्डियक अरेस्ट और इवन हार्ट अटैक कैन occur. So that is coronary artery diseases. The third disease that we are going to discuss is about angina, which is also known as angina pectoris. Angina pectoris is a disorder of acute chest pain. It is a condition where there is acute chest pain and immediately या suddenly ही ये chest pain होता है, जिसका रीजन ये होता है that when enough amount of oxygenated blood does not reach the muscles of the heart. Okay, enough amount of oxygenated blood does not reach the muscles of heart. जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, ठीक है, तो क्या होगा? एक्यूट चेस्ट पेन होता है और उसे कहा जाता है एंजीना. एंजीना पेक्टोरिस जो है वो कॉमन है बोथ मेल्स में भी और फीमेल्स में भी. और एंजीना पेक्टोरिस जो है वो जनरली मिडिल एज और एल्डर एज पीपल को ज्यादा होता है. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द थर्ड डिसऑर्डर, एंजीना. Next we are going to talk about another disorder associated with circulatory system, and that is heart
फेलियर. रिमेंबर, हार्ट फेलियर इज नॉट हार्ट अटैक. ठीक है, हार्ट फेलियर कब होता है? व्हेन योर हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड एफिशिएंटली. ठीक है, पंप तो कर रहा है बट हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड, एफिशिएंटली. ठीक है, पंप तो कर रहा है पर एफिशिएंटली नहीं कर रहा टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द बॉडी, बॉडी को जिस अमाउंट में ब्लड चाहिए, जिस अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उतने एफिशिएंटली हार्ट अगर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा तो उसे कहा जाता है हार्ट फेलियर. ठीक है, सो हार्ट फेलियर इज ऑल्सो कॉमन, राइट. और इन केसेस में जैसे कि हार्ट फेलियर है तो वहां पे क्या होता है कि एसए नोड जो है वो शायद ठीक से काम नहीं कर रहा. इट इज नॉट सेंडिंग द सिग्नल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स ऑन टाइम. तो यहाँ पे एसए नोड की जगह पे एक आर्टिफिशियल सिलिकॉन का बना हुआ पेस मेकर भी हार्ट में प्लेस किया जाता है. ये पेस मेकर जो है वो आर्टिफिशियली एसए नोड का काम करता है और टाइम टू टाइम सिग्नल सेंड करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ atria and ventricles. However, the method is very costly, so most of the people would not be able to afford such type of treatment. But pacemaker is an instrument which can be kept instead of SA node if SA node is not sending the signals on time and contraction is not happening, or systole of atria and ventricles is not very properly occurring. In that case also it can be done. Other than that, there is one more disorder which I need to talk about is cardiac arrest. Cardiac arrest happens when heart stops pumping. जब हार्ट जो है पंपिंग ही स्टॉप कर देता है, ठीक है, पंपिंग ही नहीं हो रहा ब्लड का, तो उसे क्या कहा जाता है? कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है. और वैसे ही हार्ट अटैक भी होता है वेयर हार्ट अटैक अकर्स व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट. अगर हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो हार्ट अटैक आता है. ठीक है, सो व्हेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड डज नॉट रीच द हार्ट तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं. कार्डियक अरेस्ट अलग है क्योंकि यहाँ पे हार्ट ने पंप करना ही बंद कर दिया है, हार्ट इज नॉट बीटिंग इटसेल्फ, तो कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है. हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि हार्ट इज नॉट एफिशिएंटली पंपिंग द ब्लड. हार्ट पंप कर रहा है पर एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा है, इसलिए सारे वाइटल ऑर्गन्स को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा. यहाँ पे ट्रीटमेंट्स में एंजियोप्लास्टी या आपने शायद सुना होगा बलून ट्रीटमेंट किया जाता है, इन विच थ्रू अ कैथेटर. कैथेटर मतलब एक प्लास्टिक की ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके एंटीरियर एंड पे बलून लाइक स्ट्रक्चर को प्लेस करके देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आर्टरी व्हिच इज ब्लॉक्ड एंड देन आफ्टर दिस बलून विल बी इन्फ्लेटेड. एज इट इज इन्फ्लेटेड इट विल बी क्रशिंग द फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम दैट गॉट डिपॉजिटेड इन द ल्यूमेन. ठीक है, जैसे कि ये एक आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है दैट थ्रू अ कैथेटर a balloon like structure is being inflated. अगर ये इन्फ्लेट किया जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सारा कैल्शियम और ये सब डिपॉजिटेड था, फॉर एग्जाम्पल हियर देयर इज अ प्लेट, तो क्या करते हैं बलून को इन्फ्लेट किया जाता है. इन्फ्लेट करने पर सराउंडिंग वॉल पे जो कैल्शियम और कोलेस्टेरॉल डिपॉजिटेड है वो क्रश हो जाता है, क्रश होके छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है एंड देन इट फ्लोज अलोंग विद द ब्लड. और बलून जो है उसे कैथेटर के साथ रिमूव कर दिया जाता है. सो दैट इज द वे जिससे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ स्टेंट भी प्लेस किए जाते हैं. स्टेंट जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के छोटे से कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनका भी रीजन यही होता है, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लॉक्ड आर्टरीज. ठीक है, so that are all disorders of the circulatory system, and here we have completed this chapter. In the next class we will begin with the another chapter.